Hello and welcome to all. Today we will discuss another 5 questions from UPSC Prelims PYQs. These questions are related to general science and technology. We will look at number 1, genetically modified mustard. Some terms that were mentioned in the news back then, means in 2018. Communication technologies, 3D printing, and finally we will end up with India's space launch vehicles. All these questions were asked in prelims 2018 and we will look at them one by one. इन सभी क्वेश्चंस को करते हुए आप अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में, एंड कीवर्ड्स बेसिक नॉलेज विल एनेबल यू टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस दैट UPSC frames every year based on previous year questions keywords. Finally, you will be able to clear your concepts as well as revise them. Let's start with questions. With reference to the genetically modified mustard, यानी GM mustard, developed in India, consider the following statements. जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जो है उसके रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं. वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज करेक्ट. Number 1, genetically modified mustard has the genes of soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to a wide variety of pests. Second, GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization. Then there is another point, GM mustard has been developed jointly by IARI and Punjab Agricultural University. You have to tell which of these are correct. 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only. At this point in every question you should pause the video, read the question again very carefully, take the help of Hindi translation if it is needed. Then it will help you in understanding the explanation part in a better way, and it will also enhance your memory of the relevant fact and information. Correct answer in this case is D, means only second statement is correct, that is GM mustard has genes that allow the plant cross pollination and hybridization. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज सोइल बैक्टीरियम से इसका कनेक्शन नहीं है. थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इट इज डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हुज नेम इज दीपक पेंटल. इन्होंने इसको मतलब डेवलप किया. इन एक्सप्लेनेशन पार्ट वी गेट टू सी GM मस्टर्ड क्या है. ये क्रॉप वैरायटी है मस्टर्ड की जिसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया गया है आर्टिफिशियली. कैसे? बाय इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. ऐसा क्यों किया गया? ताकि कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड की जा सकें इस मस्टर्ड सरसों के पेड़ को, पौधे को. कौन सी प्रॉपर्टीज? ये सभी प्रॉपर्टीज, ताकि इसकी हाई इल्ड हो, पैदावार ज़्यादा हो सके, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, डिजीज़ और ड्रट रेजिस्टेंस ये बन जाए, हार्बिसाइड्स की टॉलरेंस इसमें बढ़ जाए, क्रॉस पोलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सके. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के प्रोफेसर ने इसको इन्वेंट किया था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. दैट इज़ DMH. इसका ऑफिशियल नेम है दारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11. इसमें जो मेन जीन्स है दैट इज बार्नेज एंड बारस्टार. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. कुछ टर्म्स दे रखी हैं जो बार बार न्यूज़ में यूज हो रखी हैं. दैट इज बेल एक्सपेरिमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड CRISPR-Cas9. देन देर इज टॉपिक या कंटेक्स्ट कि भाई ये किस कंटेक्स्ट में यूज हो रखी हैं और क्या ये जो पेयर्स हैं ये ठीक मैच कर रखे हैं या नहीं. You have to tell that much only. 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3 means कौन कौन से पेयर इनमें से करेक्टली मैच्ड है. अगर आप ध्यान से इस पे गो थ्रू करेंगे, अच्छे से अपने कंसेप्ट को, इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करेंगे,
then you will realize that only second pair is correctly matched. B is the right answer in this case. जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है that is related to digital या cryptocurrency. Bell experiment is related to particle physics and it is a scientific experiment of Japan to explore. We will look at that later. Then CRISPR-Cas9 is related to genetic engineering as we already know. बेल एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है पार्टिकल फिजिक्स का, ताकि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स और फोर्सेस हैं दैट मेक अप द यूनिवर्स उनको अच्छे से स्टडी किया जा सके. जापान ने इसको स्टार्ट किया है सिंस 2017. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस. किस चीज़ की प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन. कहाँ पे? इन ए चेन ऑफ ब्लॉक्स. क्यों? ताकि ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सके जिसमें डाटाबेस जो भी है, जो भी डाटा जानकारी इंफॉर्मेशन है, वो बिल्कुल सिक्योर हो, उसको हैक वगैरह नहीं किया जा सके और उसको चेंज नहीं किया जा सके. फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी के केस में इसका यूज़ होता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इसका आजकल इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही हैं. देन देर इज CRISPR-Cas9. इट इज़ ए मोलिकुलर सीजर. इसको ऐसा बोल सकते हैं जो साइंटिस्ट को ऐसा करने के लिए अलाउ करता है. क्या करने के लिए? कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो जीन्स हैं उनको एडिट कर सके. जीन को एडिट करने का मतलब क्या है? किसी भी DNA मॉलिक्यूल को कट करना, रिमूव करना या रिप्लेस करना. इस प्रोसेस को एडिटिंग ऑफ जीन्स बोलते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में भी और हेल्थ सेक्टर में. नेक्स्ट इज देर इज ए स्टेटमेंट or you can say there is a situation or context has been explained. You have to read it, understand it, and then go to the question. When the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, all right, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day's weather and also indicates the level of water in your overhead tank. In addition to that, after you take some groceries from your refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and places an order for the supply of fresh grocery item. क्या बता रखा है अब तक कि भाई आप अगर अपने स्मार्टफोन का जैसे ही आपका सुबह अलार्म बजता है, अलार्म बंद करते हो तो ऑटोमेटिक यानी आप उठ गए तो गीज़र ऑन हो जाता है, जिससे आपको बाद में नहाने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस चालू हो जाती है. आप जब बाथरूम में जाते हो फेस वगैरह वॉश करने के लिए, जो आपका स्मार्ट मिरर है वो ये बता देता है कि भाई आज दिन में मौसम कैसा रहेगा, आपकी जो पानी की टंकी है उसमें कितना पानी है. रेफ्रिजरेटर से जैसे ही आप कुछ सामान निकालते हो तो वो ये नोटिस कर लेता है कि भाई किस चीज़ की शॉर्टेज हो चुकी है स्टॉक में, खाने पीने की चीज़ों में, और वो ऑटोमेटिकली मतलब फ्रेश ग्रोसरीज ऑर्डर कर देता है. व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड लॉक द डोर, ऑल द लाइट्स, फैंस, गीजर्स एंड AC मशीन गेट्स स्विच्ड ऑफ ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो तो जितनी भी लाइटें हैं अंदर, गलती से अगर आप कुछ लाइट, कुछ फैन वगैरह चालू छोड़ दिया, AC वगैरह ऑन रह गया, तो ऑटोमेटिक जैसे ही आप बाहर निकल के डोर को लॉक करेंगे, सारे घर की जो भी लाइट्स हैं, फैंस हैं, वो सब ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएंगे. देन ऑन द वे टू ऑफिस, योर कार warns you about traffic congestion ahead and suggests an alternative route. And if you are late for a meeting, it sends a message to your office accordingly. मतलब आपकी कार भी इतनी स्मार्ट है कि वो अगर आगे ट्रैफिक है उसको तो आपको अल्टरनेट रूट सजेस्ट कर देगी, और अगर आप लेट हो रहे हैं मीटिंग के लिए तो वो वहाँ पे मैसेज सेंड करके भी आपकी लोकेशन की या जो भी अपडेट आप देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचा देगी. इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज,
emerging communication technologies. Which one of the following terms best apply to the above scenario? इस सिनेरियो पे नीचे चार दी गई टर्म्स में से कौन सी अच्छे से एप्लीकेबल है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. सो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए ये सब किया जा सकता है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है ये देखते हैं. ये एक नेटवर्क है किस चीज़ का? फिजिकल डिवाइसेस का. कौन से फिजिकल डिवाइसेस? जैसा हमने इस पैसेज में भी देखा कि आपका मान लीजिए स्मार्टफोन है, आपका मिरर है, आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका हाउस है, आपका कार है. ऑल दीज आर फिजिकल डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू, और उनमें ये एबिलिटी है कि वो डाटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने मोबाइल से ही एसी को रेगुलेट कर लिया, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दिया. आप चाहे आप घर से बाहर हैं या अंदर है, उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपने अपने मोबाइल से ही रेफ्रिजरेटर को कंट्रोल कर लिया. दिस इज़ अनदर एग्जांपल. देन दो तीन टर्म्स और दे रखे हैं इसमें. क्या है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. ये क्या है? ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड राउटिंग इंफॉर्मेशन, कि भाई क्या रूट होना चाहिए किस चीज़ का? डाटा का ट्रैवल करने के लिए बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट. कि भाई जो पूरी दुनिया में इंटरनेट का एक नेटवर्क है उसमें डाटा किस तरह से ट्रैवल करेगा, कौन सा रूट उसके लिए सूटेबल होगा, ये डिसाइड करने का काम बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है. ये जैसे जीपीएस काम करता है, सिमिलरली डिजिटल वर्ल्ड में ये काम करता है. डाटा मीन्स मान लीजिए आपने ईमेल सेंड किया किसी को, तो दिस इज़ डाटा, उसमें इंफॉर्मेशन है और डाटा है. इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? ये भी एक सेट ऑफ रूल्स हैं या गाइडलाइंस हैं किस चीज़ के लिए, कि किस तरह से जो डाटा है वो इंटरनेट पे सेंड और रिसीव किया जाएगा. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? दैट इज़ वीपीएन. इट इज़ ए प्रोसेस. किस चीज़ की प्रोसेस? टू एस्टेब्लिश सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन. किस चीज़ के बीच में? डिवाइस और इंटरनेट के बीच में. इसका क्या मतलब है? सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन का मतलब ये है कि जो आपका आईपी एड्रेस है वो हिडन रहेगा, आपकी लोकेशन है वो हिडन रहेगी, आपकी जो इंटरनेट एक्टिविटीज़ हैं उनका भी मतलब एनोनिमस रहेंगी. दे विल रिमेन हिडन. नेक्स्ट इज 3D प्रिंटिंग एज एप्लीकेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग. सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रखा है. 3D मुद्रण जो है उसकी एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चन है. नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स. नंबर 2 मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स. नंबर 3 ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. नंबर 4 रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज. नंबर 5 डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज. Select the correct answer using the code given below. 1, 3 and 4, 2, 3 and 5, 1 and 4, 1, 2, 3, 4 and 5. तो करेक्ट आंसर ये एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें वाइड पोटेंशियल है और अलग अलग सेक्टर्स में इसका यूज हो सकता है. करेक्ट आंसर इज डी. 3D टेक्नोलॉजी क्या है या 3D प्रिंटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है. किस चीज़ की प्रोसेस? 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बनाना अलग अलग मटेरियल्स का यूज करके बेस्ड ऑन एक डिजिटल 3D मॉडल. यानी एक कंप्यूटर सिस्टम में पहले एक आपका मॉडल तैयार किया जाएगा, 3D मॉडल, कि आपको ये बनानी है चीज़. देन बेस्ड ऑन दैट डिजिटल 3D मॉडल एक रियल मतलब फिजिकल वर्ल्ड में उसका सिमिलर 3D मॉडल तैयार किया जाएगा यूजिंग वेरियस मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स, वेस्ट एट्सेट्रा. 1980s में ये ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंड में आई थी टेक्नोलॉजी. अलग अलग फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं. जैसे सोशल सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन में
जो इंजीनियरिंग मॉडल्स वगैरह है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में बायोनिक ईयर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में आप इसको काम में ले सकते हैं। इन इकोनॉमिक सेक्टर इफ़ यू गेट टू सी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, एनवायरमेंटल सेक्टर में वेस्ट रिडक्शन में इसको काम में लिया जा सकता है। देन इन टेक्नोलॉजी, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज इसकी एप्लीकेशंस। Next is with reference to India's satellite launch vehicles SLVs। तीन स्टेटमेंट दे रखी हैं एंड यू हैव टू डिसाइड निम्नलिखित तीन जो कथन हैं उनमें से कौन से ठीक हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल launch the satellite useful for अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, whereas GSLV यानी geosynchronous launch vehicles are designed mainly to launch communication satellites. Satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on Earth. Then there is another statement, GSLV Mk3 is a 4-stage launch vehicle with the first and third stages using solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rocket engines. So correct answer in this case is A, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है कि जो इंडियाज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं उनमें PSLV का यूज़ मेनली अर्थ के रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए होता है, इसका कम्युनिकेशन के लिए। सेकंड इज़ इनकरेक्ट, थर्ड इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। कंपैरेटिव वे में देखते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या हैं। ये लॉन्च व्हीकल हैं जिनका यूज़ करते हुए सैटेलाइट्स को कहाँ पे प्लेस किया जाता है, स्पेस में, जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें एंड लो अर्थ ऑर्बिट में। देन GSLV ये भी एक लॉन्च व्हीकल है जिसका यूज़ किया जाता है सैटेलाइट्स को कहाँ पे प्लेस करने में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। देन इट इज़ एन मीन्स ओल्डर लॉन्च व्हीकल 1980s में डेवलप हुआ था। GSLV को थोड़ा बाद में 1990s में डेवलप किया गया था। इसकी जो कॉस्ट है वो कम रहती है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसमें 4 स्टेज फ्यूल सिस्टम है। 4 स्टेज मतलब सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड इन दिस वे, alternating solid and liquid. Then it has 3 stage fuel system which is solid, liquid and cryogenic this way. देन इसकी पेलोड की कैपेसिटी कम रहती है, ये ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। ये ज़्यादातर मतलब मोर फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, इसको कम यूज़ करते हैं। मेन जो मिशंस PSLV का लॉन्च करते हुए लॉन्च किए गए हैं दैट इज़ चंद्रयान 1, मंगलयान जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी बोलते हैं, आदित्य L1 ये सन के लिए लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन यूज है अर्थ के जो रिसोर्सेज है उसकी मॉनिटरिंग में किया जाता है। देन दीज मिशंस आर GSAT सीरीज, इनसैट सीरीज, ये सभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड मिशंस हैं। दैट इज़ ऑल इन दिस डिस्कशन। थैंक यू।